Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start two topics that was super keyword which I have discussed yesterday. Today also I'm going to continue with the particular topic, and also I'm going to continue the next topic, that is method overloading. In the last video I have explained you about that what is method overriding and what is inheritance, that we have covered in the last session, and in the current session we are going to cover about the method overloading and the super keyword. So first we will be discussing about what is method overloading and what is the definition of method overloading. बेसिकली ओवरलोड का मतलब ही ये रहता है कि अगर आपको कोई भी एक पर्सन है, इफ यू आर गिविंग ट्राई टू गिव द वर्क टू द पर्टिकुलर पर्सन बियॉन्ड देयर लिमिट, सो वो आपका मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है. सो यू कैन से इफ ए क्लास हैज मल्टीपल मेथड्स, if a class have multiple methods having same name, if a class has multiple method by same name or having same name but difference in a parameters, it is known as method overloading. Means if a class एक ही है, have multiple methods by the same name, suppose a person is Ram but different parameters, but work you have allowed to him that is different. Suppose I have created one method in a class, method overloading. Method name is sum. Likewise, I have created 5 or 6 method by the name of sum, but trying to do the addition. In one method, I am trying to do the addition for 2 number. In next method, 3 number, 4 number, 5 number, likewise. So when a class has multiple methods by the same name but different in parameters, that is known as the method overloading. So basically, if we have to perform only one operation having same name of the particular method, that increase the readability. I no need to do the overloading or overriding perform in two class. We are talking about overloading, forget it about. सो अगर आपके पास एक क्लास में एक ही मेथड है तो आप उसको कॉल कराएंगे, कोई मतलब नहीं है आपको मतलब कौन सा मेथड कॉल करा रहे हैं. जो मेथड एक ही है तो उसमें आप एक ही कॉल कराएंगे. बट अगर आपके पास मल्टीपल मेथड्स है लेकिन उनका नाम सेम है और जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो पैरामीटर आप डिफाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट है, सो दैट इज ओवरलोडिंग. ओके. सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताने वाली हूँ. पहले हम ये करते क्यों है ओवरलोडिंग ये हम बताते हैं आपको. बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. Suppose I want to perform 3 different action on a same method. Okay, so what you will do, you will be using the same method name by the name of same method, but 3 different operation you will be mentioned inside all these 3 methods. Okay, that method overloading in Java possible by in 2 ways. First is by changing number of argument, second by changing the data type. Suppose you are having the method name sum, so you will be having the 2 parameter integer a integer b. In the next method you are having the name sum but the parameter 2 ही रहेंगे लेकिन डेटा टाइप उनका डिफरेंट हो जाएगा. सो इस तरीके से भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं. एंड सेकंड, आप रिटर्न टाइप लगा के, नॉन रिटर्न टाइप लगा के बाय द सेम मेथड का नेम जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं वो अप्लाई करके मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं. बट मेथड ओवरलोडिंग विल बी परफॉर्म इफ यू आर हैविंग अ सेम name method, multiple methods by the same name but different parameters. So you can achieve the method overloading, and the 2 ways you can achieve the method overloading: first by changing the parameters or argument, second by changing the return type. So I'm going to give you the example. So first we will be discuss about the by changing the number of arguments. So what I will do, I have created this class method overloading. So I am going to create a method here, public, sorry, choice you can write public or not, void sum. I have created one method sum, integer a comma integer b, these are the parameters I have given here, and integer c is equals to, I have given a plus b. Okay, and try to print the sum of this method. So यहाँ पे sum is equals to variable आपका c में store हो जाएगा. Okay, so this I have given here. Now
I have created one more method, void sum, but here I have written integer a, integer b, integer c. Here I am trying to do the sum of three number. I have written integer sum is equals to a plus b plus a variable. You can give anything, any name of that particular variable, and here sum is equals to plus sign and sum आ जाएगा. Okay, now I'm going to create the object of this class. Obj is equals to new. This is the constructor and you already know all these things. Obj dot sum, I'm trying to call this sum. फर्स्ट मेथड, दो आर्ग्यूमेंट है तो समझ लिए मैंने यहाँ पे ये दो पैरामीटर पास कराए हैं, तो ये मेरा पहले वाले मेथड को कॉल करेगा जिसमें दो पैरामीटर हैं आपके. दूसरा में मैंने एक और मेथड कॉल कराया इसी से सम, लेकिन यहाँ पे मैंने तीन वाला मेथड कॉल करा लिया. ऑब्ज डॉट सम ये वाला आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे मैंने इसको 10, 80 और यहाँ पे 70 कर देते हैं. कुछ भी है, मतलब तीन आर्गुमेंट आपको पास कराने हैं. ये मैंने इसको कॉल कराया. यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा आपका, ये इसकी डिसाइड. सो इन दिस एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड टू मेथड by the same name but different parameter and the return type is also same. So you can achieve by the return type same रहेगा different रहेगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट पहला सिंपल एग्जांपल है. So this is the example of method overloading by changing the parameters. अभी हम बात करते हैं डेटा टाइप चेंज करने की. सॉरी. तो अगर पहले हम यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न लगा दिया, ये इसको हम हटाते हैं. यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप स्टैटिक लगा देंगे तो, और मैंने यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे मैंने डबल कर दिया इसको, तो मेरा जो रिटर्न टाइप है पहले मेथड का क्या है, इंटीजर है, और दूसरे मेथड का मेरा डबल टाइप क्या है, डबल. तो ये रिटर्नेबल मेथड बन गया. किस टाइप का, रिटर्न टाइप. सो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे ना तो आपको यहाँ पे रिटर्न कराना पड़ेगा प्रिंट की जगह, और ये प्रिंट आपको नीचे वेरिएबल में स्टोर करके करना पड़ेगा. सो ये मेथड आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये वाला जो मेथड है आपका वो आपका सम को रिटर्न करेगा. पैरामीटर्स आप डिफरेंट यहाँ पे डबल कर देंगे तो डबल टाइप की वैल्यू आप पास करा सकते हैं. 0.0 में आ जाएगा, हम डबल कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको कुछ भी. यहाँ पे जाएंगे, ये मेरे डबल कर दिया मैंने इसको. डबल मतलब डेसिमल यहाँ पे इंडिकेट करता है जावा के अंदर. मैंने इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करा है, डिफरेंट फ्लोट और डबल में डिफरेंस वगैरह भी सब एक्सप्लेन कर रखा है. सो ये मेरा रिटर्न टाइप कैसा रहेगा, ये मेरा डिफरेंट रिटर्न टाइप. एक में मेरा रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, एक में मेरा रिटर्न टाइप क्या है, सम है. तो ये इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न टाइप ऑफ डेटा. ठीक है. तो लेकिन मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगाया है. ठीक है. तो स्टैटिक लगाएंगे तो आप क्लास के नेम से इसे कॉल करा सकते हैं. अगर आप स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो आप ऐसे ही कॉल करा सकते हैं. तो हम दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं आपको. एक काम करते हैं, इस वाले का स्टैटिक में हटा देती हूँ यहाँ पे. ठीक है. तो ये जब ये 1 मिनट रुक जाइए. तो यहाँ पे जब आप कॉल कराएंगे तो इसको आप इस तरीके से कॉल करा सकते हैं, कंट्रोल सी. मैंने इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी कर दिया. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जो क्लास का नेम है आपका, ये डॉट मेथड का नेम आ जाएगा यहाँ पे आपका सम. ओके. एंड यू विल बी प्रिंटिंग टू वैल्यू, पासिंग टू वैल्यू. आप अलग वेरिएबल में स्टोर करा के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे लिखे. पहले वेरिएबल में स्टोर कराए फिर आप उस वेरिएबल को भी यहाँ पे ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैंने किसको प्रिंट कर दिया, ओबीजे डॉट, ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम डबल वाला. यहाँ पे मैंने इसको 10.00 और यहाँ पे मेरा 80.0 और सपोज कुछ भी वैल्यू दे दो, मैंने 89.0 सपोज ही दे दिया. अभी आप इसको रन कराएंगे तो दिस विल बी योर आउटपुट. ओके. सो दिस इज द एग्जाम्पल बाय चेंजिंग द डेटा टाइप्स. ओके. होप आपको ये समझ में आया. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट वन मोर एग्जाम्पल अबाउट द मेथड ओवरलोडिंग. Then we'll discuss about the super keywords. Thank you so much.